Hi guys, how are you? So today we are doing question number 2 from your exercise 4.1. Okay, this is also very easy question. Just we have to form the equation, quadratic equation that's written that represent the following situation in the form of quadratic equation. A condition is given, a condition आपको given है, and you have to form the quadratic equation. Just form the quadratic equation, not find out the solution. Solution find out नहीं करना है, just एक इक्वेशन फॉर्म कर देना है. तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is one more than the twice of its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. Okay, we don't need to find out the length and breadth of the file. Just a condition given कि if we want find out the length of the and the breadth of the rectangular plot, so form the equation. Equation क्या होता है? Okay, so देखते हैं. Let breadth of a rectangular plot is equal to x meter, as given this is in meter. So is length of breadth of the rectangular plot is x meter. Okay, then according to question कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ rectangular plot. So what is the condition? Condition is that length is one more than the twice of its breadth. So one more than the twice of its breadth is 2x, and one more than the twice of the breadth means this is 2x plus 1 meter. ऑलराइट, समझ आया ना? जो ब्रीथ है उसके डबल से भी एक ज़्यादा है. ठीक है, ओके. चलिए, गिवन दैट ये गिवन है दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, एरिया of rectangular plot is equal to 528 meter square. Since area of rectangle is equal to area of a rectangle is equal to length into breadth. So 2x plus 1 into x is equal to क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी ये होगा ना, ये लेंथ और ये ब्रेथ इज इक्वल टू 528. मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस x और ये माइनस 528 को भी ट्रांसफर कर देते हैं. 28 इज इक्वल टू 0. बस इतना ही इक्वेशन हमें फॉर्म करना है. दैट इज सारी थ्योरी लिखनी है, सॉल्यूशन तो बस इतना ही है. ओके, दैट इज योर इक्वेशन व्हाट यू हैव टू फॉर्म. ओके, दैट्स इट. चलिए अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. Oh, we don't need to find integers, we just find the equation, quadratic equation. Okay, let's start. Integers, clear? Integers means number from minus infinity to plus infinity. Two consecutive means 1 by 1, मतलब 1 का consecutive 2, 2 then 3, 4, 5. Okay, let's start. Solution. Let 2 x and x plus 1. Okay, if one number is x, then another number is x plus 1. Okay, so
कंडीशन अप्लाई करिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, what that x and x plus 1 means product of two numbers is equal to 306. okay, 306. now solve करिए इसको। so this is x square plus x is equal to 306. okay, now so इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0. ओके, दैट इज अवर आंसर, नथिंग। बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेना है कंडीशन अप्लाई करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Okay, so हमें इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। देखते हैं क्या करेंगे। सॉल्यूशन, अच्छा एक काम करिए, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए और फिर यहाँ पे चेक करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही आ रहा है या नहीं। करिए पॉज, देखें पॉज किया था नहीं, डायरेक्टली देखेंगे है ना। चलिए देखते हैं। सो लेट present age of Rohan is equal to x year. ठीक है, therefore present age of रोहन्स मदर क्या होगी, कितनी है, 26 ईयर ओल्डर। रोहन कितना, 26 ईयर ओल्डर ना अपनी मदर से। सो दिस इज 26 प्लस करेंगे हम रोहन की एज में, x प्लस 26 ईयर, राइट ईयर। ओके, अभी क्या करना है, लेट सो Rohan's age after 3 years क्या होगी, x प्लस 3 ईयर। प्रेजेंट में x है तो 3 years के बाद कितना होगा, x प्लस 3 ईयर। एंड Rohan's mother says after 3 years क्या होगी, रोहन की मदर की एज देखिए कितनी है अभी प्रेजेंट एज, x प्लस 26, राइट, और इसमें कितना प्लस होगा, 3, दैट मीन्स x प्लस 29 ईयर, राइट, x प्लस 29 ईयर। सो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन की कंडीशन लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दैट इज x प्लस 20, दोनों की एज का प्रोडक्ट बोला है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 years। सो x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना होगा, 360। सॉल्व करिए इसको, तो ये होगा x स्क्वायर देन
प्लस 3x देन प्लस 29 को मल्टीप्लाई करिए 29 इंटू एक्स, सो 29x एंड 29 इंटू 3, सो इट्स 9 3 27, 3 2 6 प्लस 2 8, 87 इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 360 भी ट्रांसफर करिए, सो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, नो इसको भी प्लस कर दीजिए, 3 प्लस 29 इज 32 x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 माइनस करेंगे, 0 माइनस 7 मीन्स निगेटिव आएगा, एक तो ये दिख रहा है क्योंकि 360 का जो साइन है वो निगेटिव है। ओके, सो 0 माइनस 7 इज 3। ओके, देन 16 माइनस 7। ओके, क्या करेंगे, 360 अलग से माइनस करके बता दो, 360 माइनस 87, फिर 10 माइनस 6 3, तो यहाँ पे 15 माइनस 8 होगा, 15 माइनस 8 मतलब 7 एंड 2। ओके, so is 273 is equal to 0. That is our answer. Okay, 273, 360 minus 87 is 273। देखिए मैं इसको बार बार रिवाइज इसलिए कर रही हूँ कि मैं देखिए जब आप माइनस करें, अब जब आप 10th क्लास में आ चुके तो इस तरीके से माइनस मत करिए, है ना, थोड़ा सा अपने माइनस का इस कैलकुलेशन को भी इम्प्रूव करिए। जैसे हमें क्या 360 में से 80 माइनस करना है, राइट, तो 360 में से आप 87 माइनस करना है, 360 में से हम 80 माइनस करेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा, 280, इज इट 280। देन इसमें से 7 माइनस करिए, 280 में से 7 माइनस करिए, सो आंसर क्या होगा 273। क्लियर, तो आप प्रॉपरली कुछ चीज़ें अपने माइंड में कैलकुलेट करना सीखिए, क्योंकि अगर आप आगे किसी फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं, राइट। सो बी प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर। ओके, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, आवर लास्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस कम कर दी है ना, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Of course, speed less होगी तो time increase होगा. We need to find the speed of the train. Just we have to find the quadratic equation for this situation. Let's start. Okay, it's given that distance to be covered कितना है ये 480 किलोमीटर, ऑलराइट, 480 किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। सो टाइम टेकन, टाइम कितना होगा, दैट इज 480 upon x, time is equal to distance upon speed, hours. Now decrease speed of train, कितनी डिक्रीज हो रही है, 8 किलोमीटर पर आवर्स, तो 8x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। सो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस सेम है 480 एंड स्पीड हो गया है यहाँ पे x माइनस 8 आवर्स। ओके, नाउ अप्लाई द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये बोल रहा है कि जब स्पीड को कम कर देते हैं तो ये
3 आवर्स मोर टाइम होते कंज्यूम करती है ट्रेन। तो इसके अकॉर्डिंग 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आवर्स का डिफरेंस है दोनों में, है ना। दोनों टाइमिंग में कितना 3 आवर्स का डिफरेंस है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम 480 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ एलसीएम लेंगे हम, तो ये आएगा x माइनस 8 एंड x, ओके। सॉल्व करिए, तो x का मल्टीप्लीकेशन यहाँ आएगा 1x देन x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ओके। चलिए अब क्या करना है, ये 480 को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो ये और x, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x माइनस x प्लस 8 अपॉन, इसको भी सॉल्व करिए। सो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन 480, राइट। क्रॉस करिए इसको, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18 एंड 0, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160, ओके। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इधर ये। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आएगा 160 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, राइट। मल्टीप्लाई करिए 16 इंटू 8, सो 16 8 जा 128, सो इस 128 यानी 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ओके। इक्वेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ। इक्वेशन जो आएगा फाइनली मतलब यहीं पे आ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 अपॉन इज इक्वल टू 0। इक्वेशन दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा तो मैं एक बार यहाँ फिर से लिख देती हूँ। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनली इक्वेशन जो आएगा वो ये होगा, राइट। क्या करना है, स्पीड और जो इनिशियल स्पीड है उसके बाद जब डिक्रीज हो जाती है तो उसमें जो टाइम डिफरेंस है उसको लेकर हमें इक्वेशन फॉर्म करना है और फाइनली हमें ये इक्वेशन निकाल देना है, राइट। आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आप इजी हैं और आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो तो डेफिनेटली समझ ही आ रहे होंगे। चलिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू एक्सरसाइज 4.2। ओके, तब तक पढ़ाई करिए, जम के पढ़ाई करिए, क्वेरीज हमसे पूछिए और अगर वीडियोस लाइक नहीं किया है अभी तक तो उसके लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।